Yeah, hi guys. To solve this problem, LeetCode Hard, it's been asked in Amazon and Google also. So the problem is the variation has been asked. So the problem is maximum number of robots within the puzzle. So let's read the problem first. So yeah, the problem says you have n robots. You are given two zero index integer array. One is charge times and one is running cost, both of length n. And the ith robot cost charge time I units to charge and cost running cost I units to run. You're also given an integer budget. So the total cost of running k chosen robots is equals to max of charge times plus k into sum of running cost, where max of charge times is the largest charge cost among the k robots and sum of running cost is the sum of all the running costs for the k robots. Okay. So yeah, this is how you calculate the total number of cost that is required to make a consecutive number of robots running. Yeah. So if you see the problem, like okay, we have this array, okay, and these are the robots, okay. There are many robots. So let's say, and we know everyone's one is I think charging time. Uh, no, one is running cost and one is charge time. Yeah. So one is charging time, okay, and one is running cost, okay. RC. Let's name it. So यहाँ पे we can put random numbers like 3, 4, 7, 1, and 5, 2, and something like that. Okay, these numbers. And you have to find the return the max number of consecutive robots you can run such that the total cost does not exceed the budget. Okay, so obviously you start the from taking from index 0, then you go to index 1, then you go to index 2, and you can take that, okay, and you find the cost like this. Okay, it's been written here that max of charge times you will keep track of max of charge timings, okay, through iterating. Also you keep track of the sum of the running costs, okay, and you find, okay, now at some point of time you will see, okay, you go from 0, 1, 2, and you go to index 3, you will find that, okay, it exceeding the budget, so I can't go from here. Okay, so I will ask you, since it is saying that you have to take consecutive robot, so if I'll ask you that what if I remove the uh, leftmost robot, let's say I remove this, okay, so this is if I remove this, and so is it valid that if it is supporting from 0 to 3, it will support 1 to 3? Is it valid? So first of all, you see this, okay, because whenever you have to see that, okay, this problem is two pointers or not, see, obviously, I mean, if you guys have solved ample amount of medium problems, you can see the problem, read out the problem, you can see some sliding window is there, okay. Like we have to find some optimal window, maximum size window, जहाँ पे this the budget thing will work, okay, and we can make all the robots run. But in interview they can ask you that, okay, why do you think that it will work, why do you think it's a two-pointer problem? So one thing, if something works from L to R, okay, if L is left pointer, R is right pointer, so if I go from L plus 1, okay, if I say L plus 1, then it should work from at least R or R plus 1, okay, at least R or R plus 1 greater than equal to R, okay. I'm saying that if L to R is working, if you move out the left pointer, so it uh, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि basically okay it's working from 0 to 3 but 1 to 3 देख रहे हैं so it's not been working, no, क्योंकि obviously 0 to 1 to 3 भी हो रहा है, because here if you see the uh, max when you consider the whole, okay, also some we consider whole, so एक तो घट ही गया तो obviously it will work, okay. So this is the first step when you see कि this pointer this problem is a two pointer problem, okay. Now there's there is very strong. I mean, there are number of ways to write a two-pointer solution. Okay, sliding window. I generally use one methodology. Okay, I have been yeah. I learned this from Vivek Gupta. So see, you just keep track of two pointers. Okay, you keep track of tail pointer 0 and head pointer is -1. Okay,
why head -1? Because tail 0, head -1, because now I'm not taking any element, ठीक है। जब मैं मूव करूंगा हेड को, देन आई विल टेक वन एलिमेंट। अभी मैं, मेरा हेड इधर है, टेल इधर है, तो अभी मैं एक भी एलिमेंट नहीं लिया, ओके। सो दैट्स हाउ आई डू इट। I have to keep track of max also, okay। So int mx equals to 0 because everything is greater than 0, so हम x को 0 से initialize कर सकते हैं। We have to keep track of long RC sum equals to 0। RC sum is basically, we'll keep track of the sum that is been written here, sum of running cost, okay, and int answer equals to 0, okay। So the framework goes like, while tail is less than n, while head will move head plus 1 is less than n, and head plus 1 should be n, right? Right, you can go till the end, but apart from that, it should match, it should satisfy the condition। तो which condition should satisfy? अगर मैं ये element ले रहा हूँ, तो which condition it should satisfy? तो यहाँ पे तुम, you will write these things, okay। So what you will write? So I will write first of all कि जो max of mx comma the next of c of head plus 1, I think, so I will do is c, do is rc, and let's write budget as b, okay। Max of mx and c of head plus 1, okay, and plus when we take the head, जब हम head plus 1 को ले लेंगे, तो the length जो हमारा हो जाएगा, it will be become head minus tail, not +1, +2 हो जाएगा basically, okay। So head minus tail +2 into this thing, the sum of running cost, okay। So sum of running cost क्या होगा? RC sum you have already, and you will just add this RC sum plus RC of, uh, if you see here, this is RC of head plus 1, okay। So RC of head plus 1, अगर ये सारे चीजें जो हम देख रहे हैं, if everything is less than, I will do this, everything is, yeah, so if everything is less than b, less than or equal to b, I will say, then I can move, okay, ठीक है, then I can move। तो आई कैन डू हेड प्लस प्लस, ओके। सबसे पहले हेड प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूजन इन एनी ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे मैक्स लिए हैं, फिर हेड माइनस टेल प्लस टू जो हम उसको ले लेंगे, देन हमारा जो लेंथ होगा एरे का, दैट इज जो यहाँ पे बोल रहा है के इंटू सम रनिंग कॉस्ट, तो के हमारी हो जाएगा। तो यू कैन राइट पेन विथ पेन पेपर एंड सी, ओके। सो हेड प्लस प्लस, यहाँ पे जो स्टेप्स है वो कर दो, ओके। टू पॉइंटर, सो दिस इज द कंडीशन, सिंस नाउ वी कैन टेक, तो अब जितना आगे तक हम ले सकते हैं, ओके। दिस वी कैन टेक, दिस वी कैन टेक, सो दिस वी कैन टेक, दिस वी कैन टेक। तो वंस वी टेक दैट, हेड प्लस प्लस हो गया, आरसी सम ऐड कर देंगे, आरसी सम प्लस इक्वल्स टू आरसी ऑफ हेड, हेड अपडेट हो चुका है। एमएक्स को अपडेट कर देंगे, मैक्स ऑफ एमएक्स कॉमा व्हाट इज इट, सी ऑफ हेड, राइट। एंड या आई थिंक दीज ऑल थिंग्स हो जाएगा, पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी कि भाई अब नहीं हो रहा, ओके, नाउ आई कांट गो फॉरवर्ड। तो वहां पे तुम आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा हेड माइनस टेल प्लस 1 कर दो, ओके। ये लेंथ हो जाएगा हेड माइनस टेल प्लस 1, ओके। जो तुम्हारा लेंथ ऑफ एरे जितना तुम टोटल ले पाए थे, ओके। अब दिस इज एक, दो कंडीशन हम लिखते हैं। एक कंडीशन, इफ टेल इज ग्रेटर देन हेड, ठीक है। अगर कभी केस में ये हो जाए तो क्या करना होता है? तो जस्ट डू टेल प्लस प्लस एंड डू हेड इक्वल्स टू टेल माइनस 1 टू रिस्टोर दैट, ओके। एंड एल्स, तो एल्स में अब हमारे पास टेल को मूव करना है। हमारा टेल यहाँ था टी पॉइंटर, तो हम मूव कर रहे हैं टी को यहाँ पे, ठीक है। तो जब टेल को हम मूव करेंगे, तो जो भी चीजें लाइक आरसी सम से सबसे पहले हटाना हटाना होगा हमें। तो आई विल डू आरसी सम माइनस इक्वल्स टू आई थिंक आरसी ऑफ टेल, वी कैन से, या आरसी। सो एक ये हमारा ये चीज हो गया, ओके। एंड वी नीड टू अपडेट द मैक्स, ओके।
अपडेट द मैक्स, ठीक है, एंड विल डू टू टेल टेल प्लस प्लस। ओके, तो ये तीन चीजें हमें करना होगा एंड वी विल बी गुड टू गो, एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट वी कैन रिटर्न आंसर। सो द थिंग इज कि तुम मैक्स कैसे अपडेट करोगे, लाइक जैसे व्हेन यू मूव द टेल पॉइंटर यू कैन से दैट ओके, हम पुराना वाला टेल को हटा दे रहे हैं या फिर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन यू आर अपडेटिंग द मैक्स, ओके, सो तुम जैसे तुम्हारे पास नंबर ये था, लेट्स से 3 4 1 2 0, ठीक है, ऐसे। तो अगर लेट से तुम इनका पूरा मैक्स ट्रैक किए थे, ठीक है, इनका पूरा मैक्स ट्रैक किए थे 4 था, ठीक है। तो अगर हम 3 हटा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल टू 4, तो तुम बोलोगे ठीक है 4 है, बट 4 हट गया तो उसके बाद इसका मैक्स क्या है, तो हम ट्रैक ही नहीं किए ना। तो हाउ विल यू कीप नो द मैक्स, ओके। तो दिस अगेन कम्स बॉइल टू द प्रॉब्लम, एक लीड कोड में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वेयर यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑफ के साइज विंडो, ओके, ठीक है, तुम्हें के साइज विंडो के लिए निकालना है, ओके। कोई भी विंडो है उसका मैं के साइज अगर ये है मान के चलो, मतलब आई कैन फाइंड एनी के साइज विंडो, अगर मैं किसी दो साइज विंडो पूछूं, इस विंडो से पूछूं, इस विंडो से पूछूं, इस दो विंडो से पूछूं, एनी ऑफ से कि भाई बताओ इसका मैक्स क्या है, तो देयर इज वे, ओके। तो देयर इज टू वे। फर्स्ट आई विल टेल यू, एक हम मल्टी सेट मेंटेन करेंगे यार, ठीक है। आई विल डू मल्टी सेट ऑफ इंट एम्प्टी, ओके। और जो भी हमारा नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे हम एम्प्टी डॉट इंसर्ट कर देंगे उस नंबर को, क्या कर देंगे उस नंबर को, सी ऑफ हेड को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। आई इंसर्ट एम्प्टी डॉट इंसर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें जो टेल वाला एलिमेंट हटाना था, ठीक है। तो वी विल डू एम्प्टी डॉट इरेज, एम्प्टी डॉट फाइंड जो भी सी ऑफ टेल है उसको फाइंड करके और इरेज कर दो, ठीक है, वो नंबर को हटा दो। एंड अब मल्टीसेट तो हमेशा सॉर्टेड ही रहता है, एंड विल फाइंड कि अगर भाई मल्टीसेट का साइज ग्रेटर देन 0 है, ये चेक करना होता है टू फाइंड द, इफ आर फाइंडिंग mx इक्वल्स टू स्टार एम्प्टी डॉट आरबी, इसे तुम फाइंड करते हो। अगर तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है इन दिस सिंटेक्स, प्लीज गो लर्न खाना टेम्पलेट लाइब्रेरी, बिकॉज मल्टीसेट इज ए ग्रेट टूल, ठीक है। तुम एक बार में देखे कि मैं बस एक नंबर सी ऑफ टेल को मेरे को इरेज करना था, मैं इरेज किया, और वो हमेशा सॉर्टेड ही रहेगा, और लास्ट नंबर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे इटरेटर लिया और उसका रेफरेंस करके वहां पे जो नंबर प्रेजेंट था एम्प्टी डॉट आर बिगिन, और आई विल फाइंड ओके कि एम एक्स ही है, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर ये है, अगर मल्टीसेट खाली हो गया तो एम एक्स इक्वल टू 0 भी कर देंगे, ठीक है, and use the tail plus plus. Literally this much easy is this. Let's try to run it and see कि चलता है कि नहीं चलता। Okay, white tail is less than n. Okay, so we didn't do n equals to c dot size. So when someone asks you कि जब हम किसी भी k विंडो या x विंडो का हम मिनिमम या मैक्सिमम निकाल रहे हैं थ्रू द मल्टी सेट्स, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके वेट या, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, उस लॉग ऑफ जितना भी उस हम विंडो मेंटेन कर रहे हैं, ओके। और अगर मल्टी सेट हम नहीं मेंटेन करते तो हमें प्रॉब्लम होता कि हमें वापस इटरेट करके निकालना होता। तुम समझ रहे हो, जैसे मेरा मेरा जैसे मान के चलो अब टेल यहाँ आ गया, ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ फिर से मैक्स निकालना होता, ठीक है। दिस शुड हैव बीन द प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज वन वे। एक और बहुत ज्यादा प्यारा वे होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोटोन डीक्यू, ओके। अगेन वही सवाल होगा कि एक के साइज का विंडो है और तुम्हें निकालना है कि भाई मेरे को, मैं अगर खट से पूछूं कि मिन बता दो या मैक्स बता दो, तो वो तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। और मैं नंबर, के साइज विंडो का मतलब भी तो यही हुआ कि जब उस विंडो का साइज अगर के से बड़ा होगा तो मैं उस विंडो से नंबर खट भगा दूंगा। जैसे लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि आई हैव 3 साइज विंडो, ओके, अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, तो ये 3 साइज विंडो हुआ, तो इसका मैक्स क्या हुआ 4। फिर ये 3 साइज जैसे अब 5 जैसे ही लोगे तो यू विल रिमूव 3, फिर जैसे ही ये 2 लोगे रिमूव 4। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा विंडो ओएन में ये करके मतलब निकाल दूं, ठीक है। इज देयर सम वे कि मैं ओएन में ही निकाल दूं भाई, मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर। तो मल्टी सेट में तो हमें पता चल रहा था कि यार नहीं यार, लॉग ऑफ के का फैक्टर आ रहा था वो नहीं घटेगा, ठीक है। पर ऐसा कुछ है क्या ट्रिक जिससे कि हमें ओएन में निकल जाओगे। सो डीक्यू सबसे पहले क्या होता है, वी नीड टू नो दैट
एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें तुम दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये अगर मान के जो तुम्हारा बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है, तो तुम फ्रंट से भी निकाल सकते हो, इसको एफ बोल देते हैं, तो इसको बैक बोल देते हैं, ठीक है। फ्रंट से भी निकाल सकते हो, बैक से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ थिंग इज कि इसमें कोई भी ऐसे तुम नंबर इंसर्ट किए, जैसे 3 इंसर्ट किए, ठीक है, 3 इंसर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम उसके बाद तुम्हारा नंबर 4 आएगा, ठीक है, मान के चलो। एंड हम यहाँ पे मैक्स का ट्रैक कर रहे हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि जब ये भाई नंबर 4 अब मेरे पास आ गया, तो कोई चांस है क्या कि इसके बाद वाला जो भी विंडो आने वाला है उसमें 3 जो है वो मैक्स बने? चांस ही नहीं है ना, क्योंकि एक तो 3, एक तो इससे पीछे है, हटने में यही हटेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आके 3 वाला बंदा बोले कि मैं मैक्स हूँ, तो तुम मत ही रहो, निकल जाओ। तो मैं 3 को बोलूंगा चलो निकलो भाई, बहुत बढ़िया निकल गए। अब मैं बोलूंगा कि भाई 1 आ जा, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि यार 1 मैक्स हो सकता है क्या? मैं बोलूँ हो सकता है, जरूर हो सकता है भाई, हो सके कि 1 के बाद सब छोटा छोटा ही आ जाए और एक टाइम पे 4 को हटना पड़े, हो सकता है, ठीक है। तो भाई हम नहीं हटाएंगे बेसिकली 1 को, ठीक है। पॉइंट है कि अब जैसे ही 1 आया, हमारा k = 3 साइज का विंडो कंप्लीट हो गया। अब कोई बंदा पूछता है कि भाई मेरे को सबसे बड़ा नंबर बता दो, ठीक है, कि सबसे बड़ा नंबर अभी कौन सा प्रेजेंट। तो रिमेंबर वन थिंग, जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स को, जैसे हम 3 को ऐड किए फिर 4 को ऐड किए, ठीक है, तो यहाँ जो फ्रंट पे सबसे बड़ा नंबर ही रह रहा है हमारा, ठीक है, हम हटा नहीं रहे हैं उस सबसे बड़े नंबर को। तो हम खट से डीक्यू डॉट करके बोल देंगे भाई 4 है, ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हम फ्रंट वाला, तो ये तो बहुत आसान हो गया कि बताना। बट द थिंग इज कि अब हम आगे जब जाएंगे और 5 आ गया मेरे पास, अब विंडो का साइज हो गया 4, और हमें विंडो के लास्ट एलिमेंट को घटाना है। अब हाउ विल यू नो कि भाई विंडो का लास्ट एलिमेंट सबसे पहले, कि कि 3 था, ठीक है, बट तुम्हारे डीक्यू में 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये कैसे तुम फाइंड करोगे? तो सीधी सी बात है भाई, होगा तो फ्रंट पे होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं फ्रंट पे निकालूंगा, ठीक है, अगर फ्रंट पे 3 हुआ तो मैं पॉप बैक कर दूंगा, फ्रंट पे 3 नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू, ठीक है। इस चीज को फिर से समझते हैं हम, ठीक है। और 1 3 था नहीं तो कुछ पॉप बैक नहीं करना पड़ा, 5 आता है, ठीक है। अब जैसे ही 5 आ गया, अब क्या ये 1 का कुछ होने वाला है? मतलब 1 अब कहीं मैक्स बन सकते हैं? सीधी सी बात है, नहीं। 4 मैक्स बन सकता है? नहीं। सबको हटा, जब तक डी खाली ना हो जाए, ठीक है, और जब तक ये इससे कोई भी बड़ा ना मिले तुमको, अगर इससे सब छोटे मिले सबको हटा, और फ्रंट पे 5 को डाल दो, ठीक है। अगेन तुम यहाँ पे जाओ, जैसे जैसे ही मुझे लगता है कि ये 415 लोगे, फिर तुम्हारा एक विंडो कंप्लीट हो गया, फिर चेक करो फ्रंट पे 4 है, नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हटाएंगे। मतलब हट चुका होगा ऑलरेडी और 5 है अब, ठीक है। अब आई विल चेक कि अगेन 2 हो, ठीक है, हो सकता है भाई कभी बन जाए। मैक्स 7 है, 7 आते ही ये सब हट जाएगा। तो दिस इज द वे। और तुम सोच रहे हो कि हमेशा ये हट ही जा रहा है, तो मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ जिसमें नहीं हटेगा कभी भी वो, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लेता, मान के चलो 4 3 2 1, ठीक है, और डालते हैं हम डीक्यू में, ओके। 3 बन सकता है क्या? बन सकता है। 2, क्योंकि बड़ा के नहीं बन सकता है, बट छोटा वाला मैक्स बन सकता है। अगर 4 के बाद कोई बड़ा आ जाए तो 4 तो कभी मैक्स बन ही नहीं सकता है, सीधी सी बात। लेकिन 4 के बाद कोई छोटा आ जाए तो हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि आगे आके बन जाएगा 2, ठीक है। अब जैसे ही बात होती है कि 1 को ले आने की, इफ आई से कि भाई 1 का क्या सीन है, तो वो जाके देखिए कि विंडो का साइज बड़ा हो गया है, डीक्यू का फ्रंट देखो, डीक्यू के ऊपर फ्रंट 4 है, और तुम्हारा जो टेल नंबर था वो भी 4 है, तब तुम 4 हटा दोगे, इस केस में नहीं हटा था, ठीक है। तो फिर तुम्हारा 3 2 1 और फ्रंट पे 3 हमेशा रहेगा। तो दिस इज द वे। इसको तुम्हें तो 2 3 4 बार देखना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है इसको। जैसे अभी देखो, अभी ये कितना कर रहा है, बीट्स 30.89%, 190 मिली सेकेंड। पता नहीं, अगर ये सही होता है तो ठीक है, वरना देखते हैं। तो डी क्यू ऑफ इंट डी क्यू, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम। और सब वही चीज हम करेंगे, कुछ नहीं, मैक्स वैक्स ये सब वही सब चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बस ये कर देंगे, हाँ, ये हटा के इसको करो कमेंट, इसको करो कमेंट, and you just do dq dot push back, dq dot push back कर दो।
और अगर हम पुश बैक करें तो जो अभी तो खाली था मेरा, और अभी किसको हम पुश बैक कर रहे हैं जिसके लिए हमें मैक्स निकालना है, तो वो हो जाएगा सी ऑफ हेड। सी ऑफ हेड को पुश बैक कर दो। अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक वाइल डी क्यू डॉट एम टी अगर खाली नहीं है, ठीक है, एंड ये जो नंबर आया है अभी सी ऑफ हेड, अगर ये बड़ा है डी क्यू डॉट फ्रंट के, ठीक है, अगर ये बड़ा है मान के चलो, जैसे कि 5 आ गया, तो क्यों पीछे छोटे वाले को रखना है, भगाओ सबको डी क्यू डॉट पॉप। मतलब तुम, जैसे मैं यही चीज बोला कि अगर तुम्हारे पास 5 आ गया, तो इसके पीछे जितने भी लोग हैं उनको क्यों रखना है, रखना ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि पीछे से निकालते जाओ ऐसे, फ्रंट से निकालते जाओ, आगे से निकालते जाओ, क्योंकि पीछे वाले सबसे दूर है ना, तो उनको निकालते जाओ, तो डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट। ठीक। और हाँ, बस यही करना है और कुछ नहीं। सी ऑफ हेड इज डी क्यू डॉट, हाँ डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, अगर वो बड़े हैं तो ठीक है। अब एक और चीज आती है यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा डीक्यू मेंटेन्ड है अब, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो ना कि इरेज वाली चीज है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अब हमें डायरेक्ट देखना है कि भाई डीक्यू हमारा मेंटेन चल रहा है, मस्त चल रहा है, ठीक है। तुम उसका चिंता मत करो, तुम्हें बस इसमें ये देखना है कि इसमें टेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। तो तुम ये देखोगे कि इफ, सबसे पहले कि डीक्यू एम्प्टी ना हो, पहली चीज है। दूसरा, अगर भाई ये डी क्यू डॉट फ्रंट इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा सी ऑफ टेल था, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट बोल दो कि ए भाई ये तो आ, हमें हट निकालना है, तो मैं कर दूंगा डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पहले ही निकल चुका है ऊपर में, सीधी सी बात। और तो भी हटा दो। हाँ, अब हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या, जब तुम डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट कर चुके हो, ठीक है, अब तुम्हें वापस से मैक्स मेंटेन करना है, ठीक है। तो तुम वही कर दोगे, डी क्यू डॉट साइज इक्वल देन जीरो, तो अभी सबसे जो तुम्हारा बड़ा होगा वो फ्रंट पे ही पड़ा हुआ होगा यार, तो एम एक्स इक्वल तुम कर दोगे डी क्यू डॉट फ्रंट। और अगर खाली है तो एम एक्स तो जीरो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर दो। तो अब इसको रन करके देखते हैं। सो एक्सेप्टेड, एंड लेट्स सी। ओके, 189, 190। ओके, तो कोई तो टेस्ट कैसे फंस रहा है। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था हमें, यहाँ हमने डी क्यू डॉट पुश बैक किया सी ऑफ हेड को, ठीक है। हम बैक से पुश कर रहे हैं, और जब तक डी क्यू एम्प्टी नहीं है और हम खाली कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर है, जैसे जैसे मेरे पास 4 3, जो भी है, एक सेकंड रुको यार, 4 3 2 1, 4 3 2, इसको 7 बोल दो यार, एक सेकंड। हाँ हाँ, 7 1 5, ठीक है। तो अगर मेरा 5 मेरे को नंबर दिख गया, तो कौन कौन से जो लोग हैं जो मैक्स कभी बन ही नहीं सकते हैं, उन लोग के बारे में बताओ। तो मुझे लगता है कि फ्रंट से ही पॉप बैक करेंगे, ये लोग क्या ही मैक्स अप बनेगा कोई भी रेंज में। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये छोटे हैं। हाँ, 7 है, 7 बन सकता है। तो ये चीज तो ठीक है कि जो फ्रंट पे है उनको हम लेंगे। सी ऑफ हेड इज ग्रेटर देन डी क्यू डॉट फ्रंट, अगर बड़ा है तो सबको हटाते जाओ, सीधी सी बात है। डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है। और आंसर डॉट मैक्स आंसर पुश बैक, ठीक है। आई थिंक यहाँ भी मुझे सही लग रहा है। लेट्स ट्राई टू सी, नीचे देखते हैं, नीचे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। सो इफ यू सी दैट, नीचे, ओके,
तो ठीक है, DQ अगर टाइट डॉट साइज अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मतलब अगर टेल के इक्वल है, बेसिकली सी ऑफ टेल के इक्वल है अगर, तो हम पॉप फ्रंट कर देंगे और टेल प्लस प्लस कर देंगे और मेंटेन कर देंगे। हाँ, ऊपर में था कि अच्छा हाँ, एक और चीज मेरे को लगता है ऐसा, यहाँ के ऊपर ये लगता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला तो सीन नहीं है। इफ आई से दैट इफ यहाँ पे सी ऑफ हेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कि अगर वो इक्वल है तभी हमें निकालना चाहिए क्या, तो मुझे लगता नहीं है कि निकालना चाहिए कुल मिला के। नहीं, हाँ एक गलती कर रहे हैं ना भाई, ये पुशबैक बाद में करेंगे ना, पहले हटाओ, पहले जितने भी बंदे हैं सबको हटाओ फिर तुम पुशबैक करो, ठीक है। पहले सबसे पहले हटाओ ताकि फ्रंट पे हमेशा मैक्स रहे, ठीक है, एंड देन तुम पुशबैक करो। तुम पहले ही जब पुशबैक कर दोगे तुम्हारा फ्रंट का फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ओके, फिर भी कर लो। आई थिंक ऊपर वाला लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वाइड डी क्यू डॉट एम टी, ठीक है, ये भी सही है। और सी हेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर आर डी क्यू डॉट, ये गड़बड़ है ना, क्योंकि हम फ्रंट इसको बोले हैं भाई, यही तो गड़बड़ है। हम जब बोल रहे थे, कहाँ गया हमारा, जो हम बनाए थे कुछ तो बनाया था हमने। एक सेकेंड। हाँ, जो भी बनाए थे हम, ठीक है, हम बेसिकली बोले थे कि फ्रंट आगे वाले को बोले थे और बैक पीछे वाले को बोले थे, ठीक है। तो हम जब चेक कर रहे हैं कि जो सी ऑफ हेड है उसको हम हमेशा DQ डॉट बैक से चेक करेंगे, ठीक है, पीछे वाले से चेक करेंगे जब हम उड़ाएंगे तो, कि जैसे ये नंबर आया तो हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 5 आया तो सबसे पहले 1 को देखेंगे, ठीक है, कि भाई सबसे पहले तुम बड़े हो कि नहीं हो, फिर तुम बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे DQ डॉट बैक होगा ये। कि आई विल चेक कि अगर बड़ा है, अगर सी ऑफ हेड जो है वो अगर बड़ा है DQ डॉट बैक से, तो हम उसको पॉप बैक कर दो, ठीक है। और फिर पुश बैक कर दो लास्ट में। या तो अब देख रहे हो बीट 70.46% हो गया, एंड इनिशियली इट वाज 22%, ठीक है। तो ओके, आई मीन मुझे लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया, ओके। तो ये मोनोटोन DQ का बहुत सही कॉन्सेप्ट है, तुम ये चीज देख लेना, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक बार एटलीस्ट फिर से बता दे रहा हूँ। आई नो इट्स टू लॉन्ग ऑलरेडी, बट स्टिल देखो इससे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई हैव लाइक दिस नंबर्स लाइक 4, 1, 3, 2, 5, ठीक है, 7। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, DQ मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई सबसे पहले ये ना, सबसे पहले मैं DQ एम्प्टी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको मैं ये मैं DQ में DQ डॉट पुश बैक किया 4, ठीक है। तो मेरा अभी DQ में जैसे बैक ये है, तो बैक ये है तुम्हारा 4 किए, लेकिन 4 यहीं आ गया ना, फ्रंट पे आ गया क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो DQ डॉट पुश बैक तुम 4 किए, ठीक है। फिर तुम मैं साइज लेट से 2 विंडो का साइज बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मैं 1 आया, तो 1 को अगर बोलोगे कि 4 के रहते 1 मैक्स बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 आया, ठीक है। जब तुम्हारा 3 आया तो सबसे तुम दो चीजें चेक करोगे, पहली बात कि तुम्हारे विंडो का साइज बढ़ चुका है, ठीक है। दूसरी बात कि 3 के रहते अब ये 1 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, सबसे पहले तुम 1 हटाओगे, ठीक है, और 3 को पुश बैक करोगे यहाँ पर, तो 1 तो हट ही गया। और तुम्हारा 1 का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 के रहते 1 नहीं बन सकता। और 4 है यहाँ पे, 4 को फ्रंट पे चेक करेंगे डिलीट करने के लिए, तो 4 भी हट गया। तो इसका तो फ्रंट पे 4 था और इस टाइम पे फ्रंट पे तुम देखोगे तो 3 है क्योंकि 1 हट गया। फिर आगे तुम जाओगे तो तुम बोलोगे कि ठीक है 2 के रहा 2 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही तुम 5 के लिए चेक करोगे तो 2 नहीं बन पाएगा कभी भी, ठीक है।
और मेरे को लगता है 5 के रहते कभी 3 भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 रहेगा, और फिर बाद में जब चेक करोगे तो 3 हट चुका होगा, तो इसका 5 होगा, तो इसका 4 हुआ, इसका 3 हुआ, इसमें भी 3 रहा, इसमें 5 हुआ। तो तुम ऑलवेज यू वांट कि मेरा फ्रंट पे सबसे टॉप वाला बंदा रहे, और मैं बैक से हटाते जाऊंगा जब तक मेरे बड़े वाले एलिमेंट मेरे को छोटे छोटे उससे छोटे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे। इसमें दो तीन चीजें थी, ठीक है। इफ यू नो दिस फॉर्मेट कि तुम्हें तो बस तुम्हें यहाँ चेक फंक्शन लिखना है, जैसे बाइनरी सर्च में होता था, एंड नथिंग एल्स, ओके। एंड यू जस्ट नो कि भाई मैक्स मुझे कैसे मेंटेन करना है, ओके। मैं आई विल शो यू इन सम अदर वीडियो कि मैं सेम फ्रेमवर्क यूज करूंगा, एंड मैं स्लाइडिंग विंडो का कोई भी प्रॉब्लम, 99% ऑफ द प्रॉब्लम, बस चेक फंक्शन यहाँ लिखूंगा, एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करूंगा, एंड विल गेट सॉल्व। सो या, दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। if you like it, please comment or feedback or whatever you want to say. We'll meet you in the next one. So yeah, bye.